ओके, सो मैंने कुछ पूछा था. एनीवन वांट्स टू से समथिंग? फिर से दोहराती हूँ. At our time, there was no such another separate subject called phonics. So now, what is the need of phonics? Why we need it as a separate subject? And another thing is, what do you understand when I say phonics? So, what is the basically it means or definition of phonics? Yes. Because of pronunciation. Okay. तो हमने भी pronunciation. So, ma'am, phonics is nothing but the sound of alphabets in English language, which along with the combination of मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है या आपकी तरफ से? बाकी लोगों को शाइन की आवाज सुनाई दे रही है क्या प्रॉपर्ली? No, ma'am. No, ma'am. no, no, ma'am. शाहीन, आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू है शायद, आवाज नहीं आ रही है आपके बराबर. शाहीन, एक सेकेंड ना, एक मिनट. I'll just shift my position. एक मिनट. Am I audible now? हाँ बेटर है, बोलो. Okay, so मैं ये बोल रही थी कि phonics is basically the sound of alphabets when used in different combinations of consonant and vowels. So pronunciation clarity के लिए phonics सिखाया जाता है for different sounds of alphabets in words. Okay, very good. Any another answer? Thank you. ओके, कोई कुछ कहना चाहता है फोनिक्स के बारे में और कुछ? एनी इनपुट्स? नो इनपुट्स. So she rightly said these are the sound of alphabets. And yeah, previously actually it happens because speaking at our time, the methodology was different, and mostly we used to make the major role when we are teaching some language that plays by mother tongue. Means the target language, it was mainly used for the writing and the reading purpose. When it comes to speaking, actually our teachers, means I remember my English teacher used to speak in Marathi all the time, and as and when it comes to some kind of grammar or some kind of literature, at that moment of time he shifted onto English. So it was like, it is not for speaking, it was only for the sake of reading, writing. That's how it was in the previous scenario, and that's how today many of the time it happens that candidates are facing a lot of issues when it comes to speaking that particular language. So previously that awareness, or you may say requirement, was not there that we have to use the target language as a spoken language, and that's how it was not used as a tool for speaking. But now it's a kind of thing that on the basis of that only you are going to get recruitment, or you may say good opportunities as and when it comes to your career point of view. So as this is the requirement of today's era, that's why the major focus is on the spoken language, and as its major focus is on spoken language, the pronunciation needs to be correct. And if and only if you have to actually use that particular language, you need to speak it correctly, then and then only it's a kind of thing that, oh, you are actually having command on that particular language when it comes to speaking. So that is what has changed, and that's why there is a need that we have to take it as a subject. I think this must be clear. Internet connection मेरा unstable दिखा रहा है. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जब कुछ होगा, मैं ऑडिबल नहीं होंगी या कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? अभी मैंने आपको ग्रुप पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लेटर स्टोरीज है,
एंड Yes. एक मैंने पिक्चर शेयर किया है जो आपको लिखना है पूरा, ए सेज ए जो है वो वाला पूरा आपको लिखना है, हर एक इसका लेटर का जो साउंड है वो साउंड वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है। तो Okay. जस्ट मेक टू गो थ्रू वन पीपीटी, बाकी लोगों का तो रिवीजन हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वही सारी चीज़ें इसमें है। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now phonic sound. So when it comes to phone, मतलब जिसका ना जिसको फोन कहते हैं, फोन का मतलब होता है साउंड, एंड दैट्स व्हाई जब साउंड की बात आती है जैसे माइक्रोफोन, हेडफोन, टेलीफोन, तो जितने भी जहाँ पे भी हम साउंड का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बाद फोन ये वर्ड आता है, क्योंकि फोन का मतलब होता है साउंड, एंड दैट्स हाउ, एंड जिस पर्टिकुलर इसमें उसकी स्टडी होती है, जैसे जूलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह जो लॉजी होती है, तो इसीलिए फिर इसकी जहाँ पे स्टडी होती है, जहाँ पे साउंड की स्टडी होती है, उस सब्जेक्ट को फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ये वहाँ से आया है, कि क्योंकि साउंड का नाम फोन है उसकी वजह से उसको फोनिक कहते हैं, फोनिक साउंड एंड फोनोलॉजी। तो ये अलग अलग चीज़ें, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको फोनोलॉजी पूछ सकते हैं, बेसिक्स ऑफ फोनिक्स पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बट दीज आर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स ऑन विच दे में आस्क यू क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, और एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट प्री प्राइमरी प्राइमरी टीचर्स को उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, दो दे आर language teacher or not, but yeah, they should know some basics of these subjects, because nowadays many of the schools are giving it as a separate subject also. Okay, so let's move on to phonics. So पहले आता है definition. तो ऑफ कोर्स जो लेटर है और वो लेटर जो साउंड बनाता है उसके बीच की जो लिंक है उसे फोनिक्स कहते हैं। सो फोनिक्स इज अबाउट लिंक बिटवीन लेटर एंड साउंड दे मेक। अब जो लेटर है समझो ए है ना, तो हम ए को लिखते हैं, हम उसे जब पर्टिकुलरली प्रोनाउंस करते हैं, रीड करते हैं, तो रीड के टाइम पे हम उसको ए बोलते हैं, है ना। बट एक्चुअली जब हम उसको यूज करते हैं किसी वर्ड के अंदर या फिर कहीं पे भी, जब उसका एक्चुअल रियल टाइम में यूसेज आता है, तो वो किस तरह से साउंड कर रहा है, एक्चुअली वो कहीं पे मतलब वो एक क्या है वो, बट हम उसको फिजिकली दिखा नहीं सकते हैं। तो वो वाली जो स्टडी जहाँ पे ये सारी लिंक्स आती है उसमें एक्चुअली फोनिक्स का रोल आता है, क्योंकि उसका इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि उसको कहाँ पे वो किस तरह से साउंड कर रहा है। अभी जब फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो वो कैसे साउंड करता है, वो अगर हम ये 26 लेटर्स लेते हैं ए टू जेड फ्रॉम ABCD का जो 26 लेटर है, उसका अगर हम बेसिक साउंड लेते हैं तो वो 44 साउंड्स होते हैं। तो ये जो 44 साउंड्स है एक्चुअली, उसमें फिर से आपके कंसोनेंट साउंड्स अलग है एंड आपके जो वॉवेल साउंड है वो अलग है। तो ऑफ कोर्स आपके जो वॉवेल है, 5 वॉवेल है AEIOU, वो 20 साउंड्स बनाते हैं, एंड रिमेनिंग जो कंसोनेंट्स है 21 कंसोनेंट्स, वो 24 साउंड्स निकालते हैं। तो ये जो पूरा आपका मतलब 44 साउंड्स का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से साउंड है, जो बेसिक साउंड है। और बेसिक साउंड का मतलब क्या होता है कि जब वो पर्टिकुलर लेटर फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो वो कैसे साउंड करता है, जब वो सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, लास्ट पे आएगा, तो वो कैसे साउंड करेगा। तो उसके लिए बहुत सारे अलग मतलब उसके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, तो वो अलग एक कंसेप्ट है। बट हम यहाँ पे जो भी करेंगे अभी डिस्कशन में, तो वो बेसिक साउंड की बात आएगी। एंड बेसिक साउंड कितने हैं? यस, 44. 44. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक साउंड? Basic sound means, ma'am, जब alphabet or the letter comes in the first, वो जो sound निकलता है, that is called the basic sound. Okay,
And how many sounds for vowel and how many sounds for 20 consonants? 20 sound for vowels and 24 for consonant. Okay, very good. तो सबका ध्यान है, सुन रहे हैं? Yes. Okay, now let's move on to the next slide. जब phonics की बात आती है तो yeah, there are two types of phonics. One is synthetic phonics and another is analytic phonics. तो synthetic phonics में actually जो method है उसको synthesize, एक साथ जोड़ना, उसे synthesize कहते हैं, उस process को synthesize करते हैं. तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सिंथेटिक फोनिक्स इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग साउंड्स टू मेक अ वर्ड. अब समझो एप्पल है, अब इसको मैंने ए, ठीक है, पी पी प, तो ए प्लस प एंड देन एल ल, तो मैंने ए प्लस प प्लस ल, ए प ल. तो मैंने क्या किया, पहले हर एक को तोड़ा एंड फिर उसको एक साथ जोड़ा, फिर उसका सिंथेसाइज किया एंड फिर उसका जो कंप्लीट साउंड आया वो मैंने उसको बोला, दैट इज सिंथेसिस किया मैंने, मतलब मैंने उसको जोड़ जोड़ के साउंड निकाला, दैट इज सिंथेटिक फोनिक्स. Analytic phonics involves reading whole word and breaking them down into sounds at later stage. पहले मैं पूरा एप्पल पढ़ लेती हूँ. मैंने पहले केस में क्या किया था, सिंथेसिस में ए पी प एल ल, है ना, एंड देन हर एक को फिर प्लस प्लस करके उसका जोड़ के आंसर निकाला था एप्पल. बट दूसरे केस में एनालिटिक फोनिक्स में क्या है, एग्जैक्टली रिवर्स है, उल्टा. उल्टा मतलब क्या कि मैं पहले तो उसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है वो मैं देख लेती हूँ. ओके, दिस इज लाइक एप्पल. नाउ एप्पल है, फिर मैं उसको लेटर स्टेज पे जाके फिर मैं ब्रेक करती हूँ एंड देन मैं उनको पढ़ाती हूँ, देन इट बिकम एनालिटिक फोनिक्स. तो सिंथे मतलब ये दोनों मेथड जो है करेक्ट मेथड है, एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस दे डोंट नो द कंप्लीट वर्ड अगेन इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज अभी समझो एग्जाम्पल लेते हैं, THE हम उसको द दी कहते हैं, है ना. अब इसको अगर हम इस सिंथेटिक मेथड से अगर हम उसका निकालते हैं एक एक साउंड, समझो टी, ट, एच, ह, ई, तो ट, ह, ई क्या, उसको तो हम ट, ह, ई नहीं बोलते ना, इट्स द और दी. नाउ हर वर्ड के लिए एक्चुअली सिंथेटिक मेथड कभी कभी पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल भी नहीं है. तो इसलिए क्या है कि एज एंड व्हेन मतलब स्विच होता है, जैसे रिक्वायरमेंट है वर्ड्स का उसके हिसाब से हम जब पढ़ाते हैं तो उसका हम स्विचिंग करते हैं फ्रॉम वन मेथड टू अनदर. कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल दैट ब्रेकिंग इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, but yeah, later on we can actually give some whatever logics are behind that and accordingly we prove it कि why it's not sound like this but why it sound like this. अब बोलते हैं ना, आपने वो मूवी तो देखी होगी, अमिताभ बच्चन की कोई मूवी है, बोलता है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, है ना, डीओ डू होता है और जियो गो होता है. तो फिर अभी मतलब हम नहीं बोल सकते कि क्यों डीओ डू नहीं, डीओ डू होता है तो जियो गो क्यों होता है. तो ऑफकोर्स उसके पीछे की भी थियोरी है, कुछ अलग अलग थियोरीज है, बट फिर उसके लिए आपको काफी डिटेल में हर चीज को पढ़ना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो लिटरेचर का पार्ट आता है. नाउ द थिंग इज, जैसे अभी छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को हम एट ए टाइम मतलब 10 चपाती या 10 डोसे तो नहीं दे सकते ना, हम उसको जितना उसकी जरूरत है उसके हिसाब से ही हम उसको खाना देते हैं, राइट. तो अगर आपको पता है बहुत सारी डिटेल्स उसमें है, लेकिन वो सारी डिटेल्स आप उनको तो नहीं बता सकते, है ना. ये सारी स्टडी जो है वो आपके लिए है एंड यू बीइंग अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट सब्जेक्ट मोर इजी and more means they should become more comfortable with that particular subject. So whatever difficulties are there, whatever difficult concepts are there, whatever complex things are there, whatever complications are there, that you need to understand why something is like that. So whatever queries they'll have, actually you should able to solve their queries. It's not possible to give you each and every answer, so you have to actually do your own research for everything, whatever kind of concepts are there behind phonics. और ये तो एक अलग से एक्चुअली एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, तो आज के एक सेशन में हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स अगर किसी को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप
उसका कंप्लीट कोर्स कर सकते हो, आप उसको डिटेल में रिसर्च कर सकते हो, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाई इट्स लाइक दिस, व्हाई इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये सारी चीजें, बट हाँ ये तो आपको अंडरस्टैंड आया हुआ होगा कि सिंथेसिस का मतलब क्या है, एनालिटिक का मतलब क्या है, और क्यों हमें ये दोनों अलग अलग मेथड लगती है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम सिंथेटिक से नहीं सिंथेसाइज करके नहीं बता सकते, उसको हमें एनालिटिकल मेथड से ही बताना पड़ेगा। अब को पता है कि हम एनालिसिस कब करते हैं, जब हमारा पूरा डेटा कलेक्शन हो जाता है। एक नॉर्मल एनालिसिस की बात करते हैं कि भाई ठीक है, पूरे साल का मेरा सेल हो गया, अभी मुझे एनालिसिस करना है, तो मैं एट द एंड देखूंगी कि मेरा कौन से रीजन में कौन से प्रोडक्ट का सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना परसेंट, मैं लास्ट में पूरा एनालिसिस देखती हूँ, है ना। तो जनरली जब मैं एनालिसिस करती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डेटा होता है, उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करती हूँ। तो analysis actually something which we are doing at the later stage, but here the same kind of concept you are applying here कि okay, लेटर स्टेज क्या है कि हम उसको पूरा वर्ड पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पहले पूरा वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद फिर लेटर स्टेज पे उसको जाके हम डिवाइड करते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिक्स। तो आई गेस दिस मस्ट बी क्लियर, है ना। ये दो टाइप के Yes. phonics होते हैं। Okay. Yes, ma'am. ओके, अब आता है बहुत सारे जो होमोफोन्स, मतलब जिनके ना साउंड एकदम सेम होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे तो SON सन, SUN सन, दोनों का मीनिंग एकदम अलग है, दोनों के स्पेलिंग भी अलग है, बट फिर भी दोनों जो है बिल्कुल सेम साउंड करते हैं। देन सी, एक देखने वाला सी एंड एक समंदर वाला सी, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो सेम साउंड करते हैं बट उसका डिफरेंट मीनिंग होता है ना। तो और कुछ बताओ, फॉर एग्जाम्पल। Two TW or two TO2. हाँ, साउंड Right. सेम है। हाँ, right and right. There, हाँ, राइट लिखने वाला राइट एंड राइट हैंड वाला राइट। यस, there, THEIR, there, THERE, there. हाँ, तो दो अलग अलग देयर है। एनीथिंग This, एल्स? this, THESE, this, THIS, this. फिर से बोलो। This, ma'am, THESE, this, THIS, this. ओके, दीज और दिस हम ऐसे बोलते हैं ना उसको। Yes. एनीथिंग एल्स? और किसी V, को कुछ W, WEV and WEEV. WEV, ये तो ठीक है। EV and WEE. V hours. We say na busy hours, peak hours. ओके ओके, हाँ V हाँ हाँ, right. ओके। और ओके, तो You have होमोफोन्स, tire and tire also. यस यस, गुड, हाँ, दैट्स इट। आगे बढ़े, तो होमोफोन सबको क्लियर है। तो ये थोड़े बड़े बच्चों को आता है, जैसे जूनियर सीनियर के, ऑफ कोर्स हम जूनियर में स्टार्ट करते हैं ये सारी चीजें, मतलब फोनिक्स का जो कंसेप्ट है वो जूनियर केजी में स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया था कल राइटिंग के टाइम पे कि पहले हम राइटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम रीडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जूनियर में जनरली इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो ऑफ कोर्स ये सीनियर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये सारे कंसेप्ट जो है वो लेटर स्टेज पे आएंगे, वंस दे हैव गॉट initial introduction of the subject phonics, and then actually they are started reading it properly, using it, at that moment of time we introduce all these concepts to them. So ये हो गया phoneme homophones के बारे में। Now there are again homonians. Now homonians क्या होता है, these are the words usually spell same but have different meaning. अब इसका स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। पहले केस में सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम था, स्पेलिंग भी अलग था एंड उसका मीनिंग भी अलग था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब सेम है, सिर्फ मीनिंग अलग है। अब लाइन, तो एक लाइन होता है झूठ बोलने वाला लाइन, और एक लाइन होता है ऐसे हम लाए करते हैं।
देन आता है वॉच, तो एक होता है देखने वाला वॉच, एक होता है पहनने वाला वॉच। देन आता है पेज, तो एक अपना बुक का पेज होता है, एक आता है पेजर, तो पेजर पे मैसेज करते हैं उसको भी पेज कहते हैं। देन एक होता है जैसे लिटिल बिट ऑफ दिस, लिटिल बिट ऑफ दैट। देन एक होता है बिट बाइट वाला, जो यूनिट है इसमें साइज गिनने के लिए अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे छोटा होता है बिट, देन बाइट, देन आता है फिर मेगाबाइट एंड गीगाबाइट एंड ऑल, तो वो आता है बिट। देन पेन, लिखने वाला पेन, एंड रैबिट का जो हाउस होता है उसको भी पेन कहते हैं। देन एक होता है विंड, हवा, हवा का झोंका, एंड दूसरा होता है वाइंड अप, चलो जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, है ना। तो ये जो है ये एग्जैक्टली सेम, मतलब उसका स्पेलिंग भी सेम है एंड साउंड भी वो लगभग सेम ही करते हैं, बट एक्चुअली उसका जो मीनिंग है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसे होमोनियंस कहते हैं। तो और कुछ होमोनियंस जहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल्स होमोनियंस के फ्रॉम योर एंड? एग्जैक्टली सेम, हाँ। मैम सूट Type. टाइप, Type. टाइप TYP. राइटर, टाइपिंग वाला टाइपिंग, और दूसरा टाइप This is the type of category. Yeah. कैटेगरीज एंड ऑल, हाँ। मैम सूट मैम स्टाइलिश। सूट, हाँ, सूट पहनने वाला सूट, और दूसरा सूट मैम दैट सॉन्ग तेनू सूट सूट करदा। अच्छा, मैम हाँ, माउस हो सकता है। माउस, हाँ। हाँ, कंप्यूटर वाला माउस और एक्चुअल बैट, BAT बैट। क्या डैड? बैट BAT बैट मीन्स खेलने वाला बैट, और बैट मीन्स वटवा गुड़ भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मैम लेटर अल्फाबेट, और लेटर भी होता है ना, पोस्ट लेटर। अच्छा, हाँ, करेक्ट। और लेटर यानी बाद में भी हो सकता है ना, लेटर, LETER। उसका हाँ, स्पेलिंग उसके अलग आता है, बाद लेटर, LETER। LA आता है, लेटर में LA आता है। ओके। और ओके, तो समझ में आ गया, तो हाँ, Kite, kite. राइट, The bird and the kite, patang. पतंग, हाँ। ओके, सो दीज आर द होमोनियंस। होमोनियंस अभी समझ में आ गया सबको? एग्जैक्ट सेम यस। है। तो होमोनियन एंड होमोफोन्स में क्या डिफरेंस है? होमोफोन्स के स्पेलिंग्स अलग है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम रहते हैं और मीनिंग अलग अलग रहते हैं। तो सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग एंड उसका स्पेलिंग अलग है। यहाँ पे यस। प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग या सेम है, सिर्फ साउंड एंड मीनिंग अलग है। सेम। मीनिंग अलग है। ओके। ठीक है, यस। यस। आगे बढ़े। यस। Okay. Now we have seen homophones, homonians, now phonemes. तो फोनीम जो साउंड का स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टडी है, उसे हम फोनीम कहते हैं। जैसे साउंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनीम। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 44 फोनीम्स है, 24 कंसोनेंट्स फोनीम है एंड 20 वॉवेल फोनीम है। तो ये मैं प्रॉपरली आपको फिर से लैंग्वेज के इसमें शायद बताया था मैंने, ये सिखाया होगा आपको। वैसे तो आप सबको पता ही है ना, जैसे अलग अलग लेटर के अलग अलग साउंड निकलते हैं। तो जैसे एक हम इसका देखते हैं वॉवेल का एग्जांपल, एंड एक दूसरा कंसोनेंट का एग्जांपल देखते हैं फोनीम में। ओके, तो ये है फोनेम। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अब ये जो A to Z है, ये टोटल कितने है? 26। ठीक है, अब बोला कि ये जो 26 लेटर है, ये कितने साउंड निकालते हैं? 44 साउंड। अब ये 44 साउंड कौन से साउंड्स है? इसके सारे बेसिक साउंड है। अब इसमें
वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। वॉवेल कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर? 5। 5. कंसोनेंट्स कितने हैं? 21. ऑफ कोर्स 21। ठीक है, अब ये जो वॉवेल है इसमें क्या क्या आता है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कंसोनेंट्स में आते हैं। Consonant. ठीक है, अब समझो, एक एग्जांपल के लिए समझो लिया ए। अब ए लेटर कितने साउंड्स निकालता है? कौन बताएगा? 2 हम्म 2 sounds. 2. O and nay, 3 sounds. O, A and A. ओके, एनीवन एल्स? ओके, अब इसको मराठी हिंदी में हम अ लिखते हैं, है ना? जब हम बताते हैं तो उसको अ लिखते हैं। तो ये अ हम लिखने के लिए लिखते हैं कि ए जो है वो अ होता है, बट एक्चुअली जब इसका साउंड आता है तो हम साउंड कैसे निकालते हैं? तो समझो फॉर एग्जांपल एप्पल लेते हैं, तो एप्पल में वो ए बन जाता है ना? तो पहले अ हुआ, देन ए, राइट? अब जब ये एरोप्लेन में आएगा तो ये ए साउंड करेगा, है ना? एरोप्लेन, बहुत सारे लोग एरोप्लेन भी बोलते हैं, बट एक्चुअली एरोप्लेन हम लिखते हैं, एरो हम लिखते हैं, एरो में भी आ रहा है, बट बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जहाँ पे अ का साउंड जो है वो ए आता है, एंड कुछ साउंड ऐसे हैं जहाँ पे ए का साउंड जो है ना वो लंबा साउंड आता है, लंबा, मतलब ए, जैसे केक, एरोप्लेन, एरो। अब यहाँ पे जो है वो एक्चुअली ए साउंड जो है वो सिंपल एप्पल है, बट एप्पल में हम उसको लंबा नहीं खींचते, लेकिन जब वो कुछ कुछ लेटर्स में कुछ कुछ जगह पे वो लंबा खींचने लगता है, तो जहां पे वो लंबा खींचता है ना वहां पे वो ए लास्ट में ई साउंड करने लगता है। ए, केक, देन उसके बाद में और एरो, और कुछ ऐसे है जहां पे वो ना लास्ट में थोड़ा सा ई उसका साउंड में आ जाता है। तो एक्चुअली इस टाइप के जो अलग अलग साउंड्स बनते हैं उससे एक लेटर से अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। समझो अभी ए के हमने यहाँ पे जो देखे मोटा मोटा वो 4 साउंड्स देखे हैं, वैसे ही आप दूसरे जो वॉवेल है उसका अगर देखेंगे, जैसे अभी यू का देखो, अब ये अंकल, आंटी, अम्ब्रेला सब में ये अ साउंड करता है फिर से, है ना? फिर यूनिवर्स, यूनिफॉर्म जब उसकी बात आती है तो ये यू साउंड करता है। देन उसके बाद में और बताओ यू के साउंड। यू हो गया, अ हो गया यू का साउंड, देन और कुछ याद आया तो बताना, तब तक ई का देखते हैं। अब ई जो है, ई के कितने साउंड आएंगे? एलिफेंट में ये ए साउंड करेगा, देन एग में भी ये ए साउंड करेगा, देन कहीं पे ये ई साउंड करता है। ई साउंड वाले लेटर बताओ, ई से स्टार्ट होने वाले। Engineer. हाँ, इंजीनियर, इंजिन, इंग्लिश, ये सारे जो है यहाँ पे ई जो है ये ई साउंड करता है। देन अर्थ में ई जो है वो अ साउंड करता है अर्थ के अंदर। Ma'am, emergency. इमरजेंसी में ई साउंड करता है, तो ई हो गया। ईयरफोन, ईयरफोन मैम। ईयरफोन में भी ई साउंड कर रहा है ना? यस। हाँ, एंड ए मैंने कौन सा बताया था? मैम एलिफेंट। एलिफेंट, एग। देन और मैंने कौन सा बताया अभी? अर्थ, है ना? हाँ, तो ये जो है समझो ई के अभी हमने 3 साउंड देखे, और एक आधा तो और निकल ही जाएगा। तो ये जो है इस तरह से एक वर्ड के जो है, एक लेटर के, सॉरी, अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। तो अगर आप
वॉवेल साउंड देखते हैं तो उसमें 5 वॉवेल है, ये 20 साउंड निकाल रहे हैं। अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट किया तो हर एक इसका 4 आएगा, बट वो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसे करके हो सकता है। तो नाउ दीज आर 20 साउंड्स ऑफ वॉवेल। नाउ कुछ कंसोनेंट के साउंड्स देखते हैं। अभी जैसे जी है, ठीक है। अब जिराफ में जी है, उसमें हम जिराफ में उसके बाद जिंजर में उसको जी कहते हैं। एंड गोट आ जाता है तो डायरेक्टली ये ग बन जाता है ना। तो मतलब कहा जी और कहा ग, तो ये साउंड जो है ये अलग साउंड आ जाता है। सी का कहीं पे स आता है, कहीं पे क आता है ना। तो ऐसे फिर अलग अलग कुछ वर्ड्स है जिसके लेटर्स है, सॉरी, जिसके जो साउंड है वो टोटली मतलब डिफरेंट साउंड आता है। एक जगह पे वो कहीं कुछ साउंड करता है, दूसरी जगह पे वो कुछ और साउंड करता है। तो ऐसे पकड़ के फिर ये जो 21 साउंड है, मतलब कंसोनेंट में बहुत नहीं है वेरिएशन, बहुत कम लेटर्स ऐसे हैं कि जो एक से ज्यादा साउंड करते हैं, क्योंकि बस इसमें अगर हमने 3 ऐड किया तो ये 24 बन जाएंगे। यानी कि एग्जैक्टली बाकी के जितने भी कंसोनेंट्स है, सिर्फ 3 कंसोनेंट जो है वो एक से ज्यादा साउंड निकालते हैं, बाकी सारे कंसोनेंट जो है उनका साउंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक ही साउंड निकालता है। बट दैट इज नॉट द केस विद द वॉवेल। वॉवेल के जो है वो हर वॉवेल जो है मिनिमम वो 3-4 साउंड जो है वो निकाल रहा है, इसीलिए 5 वॉवेल जो है वो 20 साउंड्स निकाल रहे हैं। अब हमने देखा कि ये जो सारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक साउंड है। बेसिक साउंड का मतलब क्या है? फर्स्ट पोजीशन। बट अगर जैसे अभी मैंने केक का एग्जांपल बोला था कि वो जो ए है वो ए लंबा आ रहा है और लास्ट में वो कहीं ना कहीं ई साउंड करने लग रहा है, तो ये जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आ गया था वहां पे। ऐसे बहुत सारे लेटर्स है जो फर्स्ट पोजीशन पे एक डिफरेंट तरीके से साउंड होते हैं, लेकिन जब वो सेकेंड थर्ड पोजीशन पे लास्ट पोजीशन पे आते हैं तो कहीं कहीं पे वो तो साइलेंट भी हो जाते हैं, मतलब उसका प्रेजेंस भी है या नहीं ऐसे हो जाता है, और कहीं कहीं पे उसके साउंड आते हैं लेकिन कहीं बहुत ही अलग तरीके से आते हैं। तो एग्जैक्टली वही साउंड जो बेसिक में है वही साउंड जो है वो उसमें होगा, जरूरी नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन, जैसे ये सिर्फ 44 है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है जब वो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आता है तो ये 1,00,000 से भी ज्यादा है। तो ये इतने जीरो लिखने से मैं यहाँ पे लाख लिखती हूँ, ठीक है। 1,00,000, 10,000, 100 नहीं, 1,00,000। तो 1,00,000 से भी ज्यादा साउंड जो है वो निकलते हैं। एंड फिर वो जो कॉम्बिनेशंस है उसे फिर मॉर्फिम्स कहते हैं। तो मॉर्फिम में सिंगल मॉर्फिम्स होता है, कंबाइन मॉर्फिम्स होता है। तो ये 1,00,000 से ज्यादा कॉम्बिनेशन वाले जो है वो सारे कब होते हैं? सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, लास्ट पोजीशन जब आती है उस टाइम पे वो सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। बट यहाँ पे हमने जो प्योरली बात की है वो कंप्लीटली जब बेसिक साउंड्स के बारे में बात की है, 44 साउंड्स, एंड हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हमने ये जो देखा। यस मैम। यस यस मैम। तो ये हो गया फोन। अभी शायद पीपीटी में सब कुछ फिनिश्ड है, एक बार देख लेते हैं। तो मॉर्फिम के बारे में वैसे मैंने बता दिया। तो ये जो 44 थे वो तो अपने बेसिक वाले थे। तो combination of these 44 phonemes produce more than 1,00,000 morphemes, which means the word. And there are two types of morpheme. One is single morpheme and another is combination morpheme. इसका भी एग्जाम्पल मुझे बताना है, बट हाँ ये पीपीटी का हमने फिनिश कर लिया है। अब थोड़ा सा जहाँ पे जो मैंने फोटो दिया है वो आपको लिखना है, एंड थोड़ा सा मेरे साथ, हम अभी फोनिक्स का सेशन है तो कुछ ना कुछ हमें बोलना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करो। अगर बहुत डिस्टरबेंस है आपके बैकग्राउंड में तो आप वैसे ही करो, अदरवाइज आप अनम्यूट हो जाओ सब लोग। जिनके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है पहले तो सारे लोग अनम्यूट हो जाओ। लेट्स सी। आ सकते हो क्या? कैमरा पे यस आ जाओ। यस Yes, ma'am. जो लोग कैमरा पे आ सकते हैं कैमरा पे आ जाओ, थोड़ा सा साथ में बोलेंगे, कुछ गाएंगे।
क्लासरूम का फील तो आने दो थोड़ा सा। क्या तुम लोग कैमरा बंद करके बैठे रहते हो? मुझे ऐसे लगता है जीवारों को पढ़ा रही हो कि क्या। स्मार्ट स्मार्ट लेडीज है। चेहरे दिखाया करो अपने। साइनी, भारती, श्रीजिता। ओके, तो पहले तो हाय। नो मैम। श्वेता का क्या चल रहा है? बार बार जा रही आ रही है। ओके, आसिफा, भारती, आप आने वाले हो कैमरा पे? श्वेता ज्वाइन हो रही है इसलिए मैं रुकी हूँ, वेट कर रही हूँ। श्वेता, आर यू देयर? ओके, तो अब तक हमने जो फोनिक्स का पूरा सेशन देखा है। नाउ व्हेन इट कम्स टू टीचिंग फोनिक्स टू चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स फर्स्ट इट कम्स लाइक A to Z एंड उसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले वही आता है। तो आपको जब उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लेटर स्टोरीज वगैरह दिए हैं, तो आप एक एक लेटर का पहले स्टोरी बता दो, उस पर्टिकुलर लेटर की स्टोरी बता दिया, एंड ये फिर जो अभी हम बोलने वाले हैं उसको आप रिपीट कर सकते हो। तो मैं एक दो ही बोलूंगी, बाकी आप लोगों को बोलना है। तो और एक फोटो जो पिछले लोग होंगे उनके पास होगा, मैं अभी वो ना थोड़ा सा यहाँ का मिट गया है, तो अगर आपके पास होगा तो आप भेजो, अदरवाइज मैं यही फोटो दूसरा वाला भी डालती हूँ। तो श्वेता, आर यू देयर? श्वेता मालचुदे, क्या प्रॉब्लम है? बार बार जा रहे हो आ रहे हो, नेट इशू है क्या? श्वेता एंड आसिफा। हमारा वाईफाई भी बंद है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट बी देयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं बोलूंगी और मेरे पीछे आपको उसको रिपीट करना है, ठीक है? A says a, बोलो। A says A as in apple. as an apple. A says a. A says A as in ant. as an ant. A says a as in arrow. A as in A arrow. says as an arrow. ओके, तो ये मैंने दो बार आपको दो टुकड़ों में बांट के बताया और एक बार पूरा बताया। तो आप दो टुकड़ों में ही कर सकते हो बच्चों के साथ जब लोगे तब। नाउ एक लेटर के लिए मैंने तीन डिफरेंट चीजें ली, मतलब एक साउंड के लिए मैंने तीन चीजें ली। आपको एप्पल भी बताया, एरो भी बताया, एंड भी बताया। तो अभी आप जब ये लिखोगे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, पहले तो उसके साउंड कितने आते हैं, एंड पर साउंड जब आप ये इस टाइप का सॉन्ग उनसे रेसिटेशन कराते हो सॉन्ग का, तो उस टाइम पे एटलीस्ट जो एक साउंड है उसके ऊपर दो तीन आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। मीन्स एक ही बता दिया हो गया ऐसे नहीं, एक साउंड के समझो स्टार्ट में वो आ रहा है, वो पर्टिकुलर साउंड आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास दो तीन एग्जाम्पल रेडी होने चाहिए इन दिस वे, ठीक है? अभी जैसे ए का मैंने 3 बार बताया, बाकी हम थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, बाकी इसका एक एक बार ही करते हैं। B says b. B says b. B as in ball. B as in ball. C says k. C says go. K as in cake. K As in cake. Now C says s भी होता है ना? तो आप इनिशियली क से शुरुआत कर रहे हो एंड देन आपको उनको वो भी बताना है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल वी मे डू इट विथ स ऑल्सो। सो मैं पूरा एक लाइन में बोलने वाली हूँ एंड देन यू रिपीट। सी सेज as in cycle. So as in cycle. So as in cycle. तो साइकिल है, सर्कस है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ पे सी जो है वो स साउंड करता है। तो ये एक टाइप का है। अब जैसे ये फोटो मैं भेजती हूँ, फिर आपको इसको जिस तरह से मेरे बाद आपने बोला है वैसे एक एक को थोड़ा सा रीड आउट करना है। दिस इज व्हाट इज वन असाइनमेंट wherein one method or you may say one type of rhythm in which you can take all A to Z sounds. Now we will try another rhythm.
ये एक रिदम है जिसमें और प्रैक्टिस हमें करनी है बाकी लेटर्स के लिए भी। एक दूसरा जो मैंने ऑलरेडी आपको फोटो भेजा है वो वाला भी ट्राई करते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग रिदम में आएगा, अलग साउंड में आएगा। A says a a a. A says A as in ant on the apple on the tree. as in apple on the tree. A as in ant on the apple on the tree. As an ant on the tree. On the tree. B says ba ba ba. B says B as in Bobby's ball. As as in a Bobby's ball. T says ka ka ka. T says K as in curly cat. Curly cat. D says da da da. D says D as in Dolly's drum. ओके अब इसके आगे जो है बाकी सारे लेटर्स के लिए इस तरह से है, तो मैंने जो ट्यून बनाया आप इसमें थोड़ा सा चेंज लाके आपके हिसाब से ट्यून बना सकते हैं, क्योंकि इस ट्यून में पहले बहुत ज्यादा वो रिदमिक हो रहा है एंड देन फिर वो इतना रिदमिक नहीं हो रहा है। तो इसको किस तरह से आपको लेना है, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए हैं। यू कैन टेक n number of things, means you can do many experiments with this, but it should not be like too many experiments and they are getting too much confused. It should not be like that. तो आप एक 2-3 वे से, मतलब वो बोर ना हो जाए कि बार बार वही, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ेगी उनको, वो तो क्लियर होना ही चाहिए और बच्चों को रिपीट करना ही पड़ता है। तो रेसिटेशन के लिए बिल्कुल एक ही चीज बार बार बता रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा बोर हो जाएगा। तो 2-3 वे से आप उनसे रेसिटेशन करा के ले सकते हो इन चीजों का। अब सबके पास इसका फोटो है जो हमने अभी मेथड लिया है, क्योंकि मैंने वो ग्रुप पे शेयर किया था, राइट। तो ये वाला जो है वो एक एक को 26 लेटर्स है एंड वी आर हार्डली कितने हैं, 8-9-10 लोग हैं। तो एक जन तीन साउंड्स करो, ठीक है। तो आपको बोलना है जैसे मैंने बोला एंड बाकी लोगों ने रिपीट किया, वैसे ही एक एक बोलेगा एंड बाकी लोग जो है उसको रिपीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ शाहीन, देन नैना, आरती। जिस तरह से सीक्वेंस मुझे दिख रहा है मैं उस तरह से बोल रही हूँ, तो एटलीस्ट आप पहले 3 लेटर्स बोलना शुरू कर दो। फर्स्ट 3 लेटर्स शाहीन, देन नेक्स्ट 3 लेटर्स नैना, देन नेक्स्ट 3 लेटर आरती। बोलो, स्टार्ट। सो इसका थोड़ा सा वेरिएशन में कर सकती हूँ। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। Okay, let me take this way. And per alphabet 1 chalega na? Yes, chalega. Okay, so I'll start with ABC. A is for apple. Apple. B is for ball. Ball. C is for cat. Cat. D is for drum. Drum. That's it. Thank you. Okay, good. Yes, Naina. Yeah. Says, Naina, 1 second. Ma'am, my student has come in. Can I just skip out? Yes, Is yes. okay? Yeah, thank you. Okay, chalo, bye. Sorry, Naina. yeah, it's okay, fine. Bye. Yeah, bye. E says a as an elephant on the engine. F says fa as in fried fish. G says g as in Goldie's gun. Yeah, Okay. I've done. Can I? Yes. Aarti? Yes, ma'am. H says her says hat. I says E I says an ice cream.
J stands for J, Z, Z. Z means J for jug, stands for jug. Jug. मैम कहना है श्वेता हाँ श्वेता. K says k as in Karan's kite. L says l as in Lamba the lion. M says m as in Mickey the mouse. N says n as in Nightingale's nest. That's it. Okay. आरती and श्वेता के लिए. Yes, next Rijita. मैम आई डोंट हैव द प्रिंट आउट ऑफ द पेपर, पर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. ओके, आई विल स्टार्ट विथ ओ. सो ओ सेज o with action. O says o. P says pa punch. Q says quack quack. Good. Well done. Muskan. Thank you. R says r, S in red rose. S says s, S in sunny Caesar. T says t, S tiny steady. Okay. U says ठीक है. S in बस. uncle's umbrella. ठीक है. Thank you. Good. Yes, भारती. भारती के बाद चंचल, then स्मिता. V says va as in Venus van. W says va as in Venus watch. X says z as in Xavier's xylophone. Y says ya as in yellow yarn. Z says z as in Zelda the zebra. Okay. चंचल आप ABCD से फिर से स्टार्ट करोगे. Okay, teacher. A for apple, a. B for ball, b. C for cat, k. D for doll, d. Okay. That's fine, teacher. Good. Wonderful. Yes, Smita, then Saili, and then Asifa. Oh, E says a as in elephant. F says for is a friend and fish. G says g as golden gun. Gold's gun. Okay. Well done. Next, Saili. Saili, you are there. Asifa. Am I audible to all of you? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Saili, Asifa. Yes, ma'am. हाँ, आपका टर्न है. Yes, ma'am. H says ha hat in Harry's hat. I says E as in ice cream. J says J as in Johnny's jar. Yes, Okay. ma'am. Good. Wonderful. Saili. K says k. K for kite. L says l. L for lion. M says m. M for monkey on the tree. Okay. Continue कर लो.
अच्छा लग रहा मैंने है। प्रिंट आउट नहीं है मैम, जस्ट मैंने इसके लिए फिर मैंने बना लिया फिर वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, वंडरफुल, वेल डन ऑल ऑफ यू। तो ये अपना आज का फोनिक्स का सेशन था। अभी आते हैं होमवर्क के ऊपर। आपको क्या करना है, ये जो पहले तो ये नोट डाउन करना है, ये बुक में एज इट इज, आपकी जो असाइनमेंट बुक है उसमें ये एज इट इज आपको लिख के लेना है, दैट इज वन थिंग। और मैं दूसरा आपको भेजूंगी और एक, उसको भी लिख के लेना है, मतलब ये दो स्टाइल में आपको लिख के लेना है। देन आपको फोनिक्स का चार्ट बनाना है। तो फोनिक्स का जो चार्ट बनेगा, एंड हाँ, आप जब लिखोगे तो ये यहाँ पे एक एक साउंड दिया हुआ है, आपको उसके इस टाइप से लिखना है उसको। मतलब एक लेटर के जो है जो साउंड बनते हैं, समझो 4 साउंड है, 3 या 4 साउंड, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो हर साउंड के ऊपर एग्जाम्पल, इतना वो क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ मिनट। तो ये इस स्टाइल से आपको अगर पॉसिबल हुआ तो ये भी आप मतलब होमवर्क के लिए, दिस विल बी एक्चुअली फॉर योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि पहले तो आइडेंटिफाई करो, जैसे ये एटलीस्ट 44 साउंड है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ एक एक साउंड ही दिया हुआ है, एंड एक एक साउंड के ऊपर ही हम सिखा रहे हैं, दैट्स फाइन। बट फॉर योर नॉलेज, योर मोर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ओके, टोटल मुझे 44 साउंड पता होने चाहिए, एंड उस 44 साउंड के ऊपर कौन कौन से वर्ड्स है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसका जो प्रॉपर होमवर्क जो आपको करना है, उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हर एक लेटर का जो है वो कितने साउंड्स होते हैं, कितने साउंड्स है, एंड उस साउंड्स के ऊपर कितने अलग अलग वर्ड्स बनते हैं। तो एटलीस्ट 3 वर्ड्स के एग्जाम्पल आपको उसमें लिखना है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज एज इट इज, इसको लिखना है, एंड थर्ड इज योर फोनिक्स का चार्ट। फोनिक्स का जो चार्ट है वो बड़े चार्ट पेपर पे आप बनाओगे, वहां पे आपको सिंगल साउंड ही रखना है, उसमें आपको एक से ज्यादा साउंड नहीं लिखने हैं। बट हाँ, होमवर्क में आपको जो आपके असाइनमेंट बुक में आप लिखोगे, उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे एंड सारे साउंड्स लिखोगे। तो जहाँ पे आप चार्ट बना रहे हो, चार्ट में आपको जैसे जो भी आप वर्ड उसको बता रहे हो, एप्पल बता रहे हो तो एप्पल का आपको वहां पे पिक्चर दिखाना है ना। तो या तो आप ड्रॉ करो, या फिर उसका कटआउट लगाओ, या फिर जस्ट जो मार्केट में स्टिकर्स आते हैं वो स्टिकर्स भी आप चिपका सकते हो। तो थोड़ा सा डेकोरेशन के साथ एंड थोड़ा विजिबिलिटी आए, मतलब क्लास में अगर आपने सामने की दीवार पे लगाया तो लास्ट बेंच तक वो विजिबल होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो दिखने में भी विजिबल होना चाहिए। इस हिसाब से आपको फोनिक्स का चार्ट बनाना है। तो जनरली बहुत बड़ा बन जाता है फोनिक्स का चार्ट, क्योंकि 26 लेटर है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखना है एंड उसका वो पिक्चर भी चिपकाना है, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। बट कोशिश करो, अदरवाइज आपने 2 अलग अलग चार्ट पेपर पे भी बनाया आधा आधा करके तो भी चलेगा। तो वो जो है चार्ट बनाना, वो उसका एक होमवर्क है, एंड जो बुक में डिटेल में लिखना है वो दूसरा होमवर्क है। तो फोनिक्स के आपको इस तरह से ये 2 होमवर्क है, एंड पैटर्न राइटिंग का जो है वो पूरा मैंने आपको कल परसों एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से आपको वो होमवर्क करना है। तो आज अपना जो एडिशनल था, एक दिन हमने प्रोजेक्ट का देखा, एक दिन हमने पैटर्न राइटिंग का देखा, एंड एक दिन हमने फोनिक्स का देखा। तो ये एडिशनल सेशन अभी हमारे ओवर हो गए हैं। तो मंडे से अपना जो है, ऑफकोर्स अभी कल परसों अपना छुट्टी है, मंडे हम मिलेंगे, है ना। आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे अपना ऑफ है, राइट। Yes, तो ma'am. हम मंडे को भी मिलने वाले हैं, तो मंडे हम सेपरेट बैच में मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बैच है प्री प्राइमरी का, उसका हम मॉन्टेसरी का फेज स्टार्ट करने वाले हैं मंडे को। एंड जो डीएड है उनका हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया था, एंड हमने बीच में फिर इनका क्योंकि ये चल रहा था तो कॉमन फिर स्टार्ट किए। तो आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी वी वर स्टार्टेड विद दैट फेज, वी विल अगेन रीस्टार्ट। एंड इन लोग का मोस्ट प्रॉब्ली मॉन्टेसरी होगा, लेकिन अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगी। एंड टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, 4 to 5 प्री प्राइमरी का बैच है एंड 5 to 6 प्राइमरी का बैच है। तो एज इट इज अपना जो 2 बैचेस का टाइमिंग है उसी प्रकार से चलेगा, एंड सिर्फ सेपरेट हो जाएंगे दोनों बैचेस। जो लिंक है उसमें भी अगर कुछ चेंज होता है तो मैं सेपरेट लिंक भेज दूंगी, अदरवाइज सेम लिंक दोनों के लिए सेम ही लिंक बना दूंगी, ठीक है। तो आज हम कंक्लूड करें फिर मैम असाइनमेंट बुक कौन सी लगानी है, सिंपल लाइंस वाली? हाँ, सिंपल लाइन वाली जो अपना रजिस्टर आता है ना 200 पेज वाला, वो ले लो एक। 200 पेज वाला, ओके।
और मैम एक पूछना था, ये चार्ट जो बनाना है फोनिक्स का, ये चार्ट हम कार्डशीट पेपर पे बना सकते हैं या चार्ट पेपर ही लगेगा? चार्ट काय पे बना सकते हैं? कार्डशीट पेपर पे, मतलब जो रफ वाला पेपर आता है उस पे बना सकते हैं? वो चार्ट पेपर जैसे ही दिखता है क्या? मुझे हाँ, नहीं चार्ट पता पेपर जैसे दिखता है। कैसे दिखता है? चार्ट पेपर जैसा दिखता है, कलरफुल रहता है वही। मैम मेरा फोनिक्स चार्ट दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ दिखाओ। ओके। वो साउंड मिसिंग है ना, साउंड भी चाहिए उसमें, है क्या? पिक्चर के अंदर है क्या साउंड? पिक्चर के अंदर साउंड लिखा हुआ है क्या? स्मिता आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, नो नो मैम, साउंड कहीं पे तो फोनिक साउंड में साउंड लिखना चाहिए ना लिखा हुआ। यस यस लिखना है मेरे को मैम। तो आप जब लेकिन बनाओगे लिखना तो कहीं ना कहीं साउंड जो है उसको आप लिखना, नए जो Yes. स्टूडेंट जो करेंगे तो साउंड भी चाहिए, है ना? मैम इसके आगे इधर लिखना है ना, इसके बीच में। हाँ, वो किस तरह से साउंड करता है उसका साउंड लिखना है। अच्छा, ओके ठीक है, ओके ओके ओके। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। चलो बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। मुझे मेरा 3D प्रोजेक्ट दिखाना था, फिश टैंक दिखाना था। लाइक 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। दिख रहा है भैया? So these are different fishes. This one, this is jellyfish, starfish, octopus, and then normal fish. I have done this in other way also, in this way also. This side there are some other water animals also. This is crocodile, whale, crab, seahorse, and tortoise. So one side, this is one side is for sea animals, and one side is the normal fish tank. Okay, good. Thank you. Done? Yeah, done. Okay, चलो बाय, कंक्लूड करें ना? Yes, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Okay. Bye bye. Bye, ma'am. Thank Bye, you. ma'am. थैंक यू मैम। Bye.